Hello friends, I welcome you all on my channel SSC All-in-One. Friends, we were doing the topic of key factor, and as far as we have done 4 problems and I have released already 4 videos in respect of product mix, where I have discussed material as key factor, labor as key factor, and land as a factor of production, which may be a key factor in examination problem. So friends, now I am going to discuss key factor with respect to the machine capacity, as machine is also one of the key factor, and this problem is very unique in itself, and this is only one problem that I have got somewhere, so that this concept of product mix, which explains how machine capacity can be a key factor, and in that case how we can decide about that which product and in which quantity it should be produced. So let's start. So as you can see, we have 3 product A, product B and product C, and question says maximum production which can be made in a month is 5000. In case of product A, product B, it is 8000, product C, it is 6000, and along with that it is given that total hours available for the month are 200 processing hours. This is very important thing. The processing hour cannot be increased beyond 200 per month. And we will have to make an assumption that, although it is nowhere mentioned anywhere, but to solve this problem it is assumed that with this 200 hours of processing, either we can produce 5000 units of A, or 8000 units of B, or 6000 units of C, as it says maximum production. So with these 200 hours, either we can manufacture product A or B or C, and thereafter we will have to decide about which product is profitable as per the statement of ranking, and then how we will allocate these 200 number of the processing hour on 3 products. So friends, let's start. So we will do the solution of the given problem like this. ये दिया हुआ है कि 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, बी और सी, और मैक्सिमम जो प्रोड्यूस हो सकता है प्रोडक्ट ए वो 5000 यूनिट, 8000 यूनिट और 6000 यूनिट. सो इसके हिसाब से व्हाट आई कैन डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 unit of the 3 products. So let's say product A, product B and product C. Maximum production is 5000, 8000 and 6000, and maximum processing hours available in case of each product. ये 200 200 200 तीनों मिला के 600 नहीं है, 200 मैक्सिमम आवर्स हैं जिसमें कि आप या तो ए प्रोड्यूस कर सकते हैं या बी या सी. इस प्रॉब्लम को केवल हम इसी एजम्पशन के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. सो दिस इज़ 200 hours, 200 hours and 200 hours. So hours required for producing 1 unit, that will be 200 divided by 5000, 8000 divided by 200, sorry
200 डिवाइड बाय 8000 एंड देन 200 डिवाइड बाय 6000। 200 घंटे में 5000 यूनिट बनती है, या 5000 यूनिट को बनाने में 200 घंटे लगते हैं। तो एक यूनिट को बनाने में कितना समय लगेगा या कितना टाइम लगेगा, सो हम लोग इसके साइड में लिख देंगे इसको। सो आई होप सो ये निकल के आएगा आपका फर्स्ट के केस में 200 डिवाइड बाय 5000 divided by 5000, so it comes out to be 0.04. Then in case of second product it is 200 divided by 8000, this is 0.025. and in case of the last product 200 divided by 6000, 200 divided by 6000, this will be 0.03333। इतने आवर्स 0.04, 0.025 और 0.0033 ये टाइम लगेगा एक यूनिट ऑफ ए बी सी को बनाने में रिस्पेक्टिवली। सो ये टाइम निकल गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके बाद मुझे बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। मेरे पास तीन प्रोडक्ट हैं, पर्टिकुलर्स, देन आई हैव प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड देन प्रोडक्ट सी। सबसे पहले मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस इज 200, 160 एंड 100। देन आई हैव वेरिएबल कॉस्ट। आप एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए आप इसके कमेंट बॉक्स में चले जाइएगा और कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ पार्ट, और पीडीएफ से देन यू कैन रेफर दिस प्रॉब्लम while solving this question. So this is contribution. So जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग आवर्स की फैक्टर हैं, तो क्योंकि प्रोसेसिंग आवर की फैक्टर हैं तो मैंने आपको बताया था हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर प्रोसेसिंग आवर की फैक्टर हैं तो कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ प्रोसेसिंग, कंट्रीब्यूशन पर आवर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग आवर हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि एक प्रोसेसिंग आवर का कंट्रीब्यूशन कौन से प्रोडक्ट के केस में सबसे ज़्यादा है, जिस भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर आवर सबसे ज़्यादा होगा उस प्रोडक्ट को हम लोग सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रोसेसिंग आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, दिस इज 0.04, 0.025 एंड देन 0.0333। इतने आवर्स लगेंगे एक यूनिट बनाने में। तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर प्रोसेसिंग आवर, सो ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिवाइड बाय 0.04, 40 डिवाइड बाय 0.025 एंड देन 60 डिवाइड बाय 0.03333, इस तरह से। तो आइए ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 0.04 अगर हम करते हैं तो फर्स्ट केस में कंट्रीब्यूशन पर आवर आएगा 2000 रुपीज़। देन अगर सेकंड केस में हम कैलकुलेट करते हैं 40 डिवाइड बाय 0.025, सो एक घंटे से यहाँ पे आएगा 16,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन। और इसी तरह से लास्ट प्रोडक्ट में आई होप ये आना चाहिए 1800 रुपीज़। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1800 आएगा ये। आइए अब मैं इसके बाद इसकी रैंकिंग करता हूँ। सो अगर आप इसकी रैंकिंग करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2000,
वाला रैंक 1, ये आपका रैंक 2 और ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका रैंक 3। इस तरह से ये इनकी रैंकिंग हो जाएगी। अब मुझे इनके प्रोसेसिंग आवर डिवाइड करने हैं कि 200 के घंटे जो है मेरे पास, वो किस तरह से मैं इन तीनों प्रोडक्ट पे लगाऊं सो दैट मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होए। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो चीज़ें बताता है। एक तो बताता है कि आप मैक्सिमम प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं, वो तो ये है, लेकिन मार्केट में आप मैक्सिमम बेच क्या सकते हैं, वो ये है। मैक्सिमम प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं 200 घंटे के अंदर, ये था 5000, 8000, 6000, जिसके हिसाब से हमने निकाला 1 घंटे में अगर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी बनता है तो हमें कितना टाइम लगेगा 1 यूनिट बनाने में। लेकिन मार्केट तो मैक्सिमम इतना ही एब्जॉर्ब कर सकती है, तो भले ही आप 5000 बना दें, बट मार्केट तो इतना ही एक्सेप्ट कर रही है। ऐसे ही इस केस में भी और ऐसे ही इस केस में। ये कहता है मैक्सिमम डिमांड इस प्रोडक्ट की 2000 यूनिट है, यानी कि 2000 यूनिट मार्केट यहाँ से ले लेगी। इस केस में 4000 यूनिट ले लेगी और इस केस में 2400 यूनिट्स मार्केट आपसे खरीद लेगी। तो आइए ज़रा देखते हैं। अगर फर्स्ट प्रोडक्ट के केस में मैक्सिमम डिमांड की बात करें, ये कहता है फर्स्ट केस में 1000 यूनिट्स, सेकंड केस में 4000 यूनिट्स एंड थर्ड केस में 2400 यूनिट्स। ये मैक्सिमम डिमांड है। रैंक 1 सबसे पहले बनेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रैंक 1, ये रैंक 3 और ये रैंक 2। तो सबसे पहले मैक्सिमम ये वाला तैयार होगा, देन उसके बाद ये, अगर कुछ और बच गए देन हम इस प्रोडक्ट को देंगे। तो 2000 यूनिट बनाने में हमारा कितना टाइम लगेगा, तो प्रोसेसिंग आवर्स रिक्वायर्ड। तो अगर प्रोसेसिंग आवर रिक्वायर्ड की बात करें तो 2000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो आप ये करेंगे तो 80 आवर्स। इसी तरह से यहाँ पे 4000 यूनिट्स और 1 यूनिट बनाने में 0.025, सॉरी पहले प्रोडक्ट सी बनेगा जिसकी रैंक 2 है। सो 18, इसका आपका मैक्सिमम डिमांड है 2400 और आपका 1 यूनिट को बनाने में 0.0333। सो आप देखेंगे तो इस पर भी 80 आवर्स और फाइनल 80 + 80 160। और मेरे पास मैक्सिमम जो आवर्स अवेलेबल हैं, मैक्सिमम आवर आपके पास हैं वो आपके पास 200। सो अगर 80 ये हो गए, 80 ये हो गए, 160 बैलेंस जो रह जाएगा थर्ड प्रोडक्ट के लिए वो रह जाएगा हमारे पास 40 आवर्स। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। और इस बैलेंसिंग से कितने यूनिट बन पाएंगे ये भी देखना है। 1 यूनिट को बनाने में 0.025 आवर्स लगते हैं, तो 40 आवर अगर हम इसको देते हैं तो 0.025, सो अराउंड 1600 यूनिट्स बनेंगे आपके प्रोडक्ट बी के। सो एज यू कैन सी दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। 1600 in case of product B, 2000 units in case of product A and 2400 units in case of product C। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप A के 2000 यूनिट्स, B के 1600 यूनिट्स और C के 2400 यूनिट बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोसेसिंग आवर की फैक्टर था। ऑल्दो इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिमांड अगर आप देख पा रहे हो 4000 यूनिट्स है, बट 4000 नहीं बन पा रहे, केवल 1600, जबकि इसके पूरे 2600 और इसके 2400 और इसके पूरे 2000। सो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हो सकती है 200 घंटे में, वो प्रोडक्ट ए की 5000 यूनिट, बी की 8000 यूनिट और प्रोडक्ट सी की 6000 यूनिट। लेकिन मार्केट डिमांड को देखते हुए, जो कि हमारे मार्केट डिमांड इस टाइम पर है, अगर आप मैक्सिमम देख पाएँ कि आप मार्केट में क्या बेच सकते हैं, तो 2000 यूनिट्स ऑफ ए, 4000 यूनिट्स ऑफ बी एंड 24 यूनिट्स ऑफ सी आप ये मैक्सिमम बेच सकते हैं। लेकिन 200 आवर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोसेसिंग के और इनकी कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो हमने डिसाइड किया, 80 आवर्स हमने 200 में से दिए हैं प्रोडक्ट ए को, जिसमें हमारे तैयार हो रहे हैं 2000 यूनिट्स,
इसी तरह से रैंक 2 था हमारा प्रोडक्ट सी का, इसको भी ATRs देके हमने तैयार किए 2400 यूनिट्स, और बैलेंस 4000 में से केवल 1600 यूनिट हम लोग बना पा रहे हैं प्रोडक्ट बी के। सो जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनेगी, प्रोडक्ट ए यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस, और इसके साथ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एज पर दी मैक्सिमम मार्केट डिमांड, एज पर मैक्सिमम मार्केट डिमांड। सो यहाँ पर आप बना सकते हैं 2000 यूनिट्स। सेकंड में जो हमने कैलकुलेशन की हैं 1600 यूनिट्स, और थर्ड में जो मेरी कैलकुलेशन आ रही हैं वो आ रही हैं 2400 यूनिट्स। आइए उठाते हैं आगे इसका सेलिंग प्राइस। तो आइए यहाँ से सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ये फिगर रहेगा आपका सेल्स का। तो 2000 यूनिट और फर्स्ट प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 200 इंटू 2000। इसी तरह से सेकंड प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 160 इंटू आप करेंगे 1600, और ऐसे ही थर्ड प्रोडक्ट का हमारा सेलिंग प्राइस है 100 और मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम 2400 से। सो आइए ज़रा इनकी फ़िगर लिखते हैं। 200 इंटू 2 दिस विल बी 400, और पीछे लगा दीजिए 3 0। इसी तरह से ये आपका आ जाएगा 1 2 6, 3 0 लगा दीजिए इसके पीछे। 16 6 96, 16 और 9 25, 2,56,000, एंड देन दिस विल बी 2,40,000। आई होप ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग आगे वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, इसमें लेस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर आपके पास समय हो, जैसे कि मैंने आपको बोला है एग्ज़ाम में आप टोटल कॉलम ज़रूर बनाएं, टोटल कॉलम ज़रूर बनाएं। कहाँ से? जहाँ से आपकी सेल की फिगर्स लिखना शुरू हो जाती हैं। तो पहले केस में आपका 4 लाख प्लस 2,56,000 प्लस 2,40,000। स्पेशली जिन लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर का नाम एडेड है, चाहे वो CA इंटर है, BCom ऑनर्स है, या फिर MBA है, या फिर आपका MCom है, अगर सब्जेक्ट का नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो प्लीज़ आप जितना मैनेजमेंट को डिटेल एनालिसिस देंगे, मैनेजमेंट उतना आपको बढ़िया ग्रेड देगा आपकी एनालिसिस को। तो इसी तरह से एग्जामिनर भी अगर आप पूरा डिटेल डाल देते हैं तो एग्जामिनर भी ऑब्वियसली आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देगा। वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट प्रोडक्ट के केस में 120 है, जैसा कि आप अगर क्वेश्चन देख पाएँ 120, सेकंड प्रोडक्ट के केस में भी 120 और थर्ड में 40। तो आइए ज़रा देखते हैं 2000 इंटू 120, सो ये आ जाएगा आपके पास 2,40,000। इसी तरह से 1600 इंटू 120, सो दिस विल कम आउट टू बी 1,92,000, और देन लास्ट 40, और ये हमारे यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं 2400 इंटू 40, सो दिस कम्स आउट टू बी 96,000। सो इस तरह से आप ये स्टेटमेंट बनाएंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस विल कम आउट टू बी कंट्रीब्यूशन। आइए ज़रा वेरिएबल कॉस्ट का भी टोटल लगा लेते हैं एक बार। $256 माइनस 1,92,000, ये आपके पास आ जाएगा 64,000। 2,40,000 माइनस 96,000, 1,44,000, और 4 लाख माइनस 2,40,000, 1,60,000, और इसके बाद 160 प्लस 64,000, 1,44,000, 3,68,000। आई एम सॉरी, ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं लिखनी है आपने, ये 3,68,000, और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 2,40,000, 1,92,000,
and then 96,000. This comes out to be 5,28,000. सो ये कैलकुलेशन हो जाएगी मेरी कंट्रीब्यूशन की. 896 माइनस 528 आप करेंगे तो यही कैलकुलेशन आएगी आपके पास. लेस फिक्स कॉस्ट. सो अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 2,76,000. तो आप यहाँ से लिखेंगे 2,76,000. So 3,68,000 minus 2,76,000, 92,000. ये आपका प्रॉफिट बच जाएगा. मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में जहाँ पर भी हम की फैक्टर सॉल्व करते हैं, जब तक इंडिविजुअली नहीं कहता कि फ़िक्स कॉस्ट लेस करनी है, तब तक आप इंडिविजुअली फ़िक्स कॉस्ट लेस नहीं करेंगे. सो आई होप यहाँ तक आपको की फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. आइए यहाँ पर मैं थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगा कुछ चीज़ों को एक बार फिर. सो की फैक्टर अगर है मेरे पास मटेरियल और मेरे पास ये अवेलेबल है केजीज़ में, इसी तरह से नेक्स्ट फिर मटेरियल और लिमिटेड टू, फिर ये रुपीज़ में. इसी तरह से की फैक्टर है मेरे पास लेबर. आइए लेबर अगर की फैक्टर है तो ये हो सकता है आर्स में लिमिटेशन, या फिर लेबर की फैक्टर है तो लिमिटेशन हो सकती है मेरे पास रुपीज़ में. इतने रुपए की लेबर मैक्सिमम अवेलेबल है, इतने आवर्स की लेबर मैक्सिमम अवेलेबल है. और अगर बात आती है मशीन कैपेसिटी की, मशीन कैपेसिटी जैसे कि ये हमने क्वेश्चन देखा अभी अभी, तो इसमें हमारा की फैक्टर क्या हो सकता है, इसमें हो सकते हैं आवर्स, मशीन कैपेसिटी इन आवर्स. सो अगर मशीन मटेरियल केजी में की फैक्टर दे रखा है तो सवाल उठा कि मैं जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो उस टाइम पर मेरा डिसीजन का क्या बेसिस रहेगा, किस डिसीजन के बेस पे मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे इनकी रैंकिंग करनी है, तो कौन से बेसिस पे रैंकिंग की जाए. तो यहाँ पर मैं करूँगा, कैलकुलेट करूँगा कंट्रीब्यूशन और पीछे रहेगा इसके पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर केजी. ऑल्दो ये कैलकुलेशन कर चुके हैं बट मैं फिर भी एक समरी के लिए बना रहा हूँ ये स्टेटमेंट. इसी तरह से अगर मटेरियल की फैक्टर होगा रुपीज़ में तो हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर रुपी. आप ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ. इसी तरह से अगर मेरे पास लेबर की फैक्टर है आर में, तो हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन और आप यहाँ लिखेंगे पर आर. इसी तरह से अगर की फैक्टर लेबर फिर दे रखा हमें किस में, रुपीज़ में, तो फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर रुपी. और इसी तरह से अगर मशीन कैपेसिटी हमें गिवन है की फैक्टर और ये है हमारे पास आर्स में, तो हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर आवर्स. फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद कहीं आपने सुनी भी नहीं होगी. कई बार क्वेश्चन कहता है बताइए इसमें की फैक्टर क्या है, और अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ ना तो वहाँ पर मटेरियल की फैक्टर होता है, ना लेबर की मटेरियल इन रुपीज़ और केजी, या लेबर आवर्स इन रुपीज़, और या फिर मशीन कैपेसिटी इन आवर्स. ये कोई भी की फैक्टर नहीं होता. इफ़ देयर इज़ नो की फैक्टर देन वी से, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ नो की फैक्टर देन सेल कैपेसिटी इज़ की फैक्टर.
अगर 1 से 5 में से कोई भी की फैक्टर नहीं है, देन वी से सेल कैपेसिटी इज की फैक्टर। और अब आपके दिमाग में एक बात आई कि यहाँ पे की फैक्टर ये था, तो आपने बेसिस ऑफ रैंकिंग ये बनाया, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, आप इसमें बेसिस ऑफ रैंकिंग क्या बनाएंगे? तो सर यहाँ पर हमारा रैंकिंग का बेस बनेगा पीवी रेशो, यानी कि अगर कोई भी इनमें से पांचों में से कोई भी पहले 5 में से की फैक्टर नहीं है, वी विल से सेल इज़ द की फैक्टर, और जिस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा पीवी रेशो होगा हम उसे प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चर करेंगे विद द अवेलेबल रॉ मटेरियल, लेबर एंड प्रोसेसिंग आवर्स। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सारा क्लियर हो गया आप लोगों को। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, सो दैट जब भी नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।